let's try nail stickers together. Hi guys, let's try nail stickers. So I ordered some nail stickers, and fun fact, I've never tried nail stickers before. Mostly extensions, gel acrylic is what I've been doing, and sometimes gel polish. But उससे ना nails थोड़े खराब होते हैं, so I wanted to try this. Let's open it together. So I've not even opened it. I'm going to show you a tutorial on how to do it. So this is the box, and when I open it, this is what I see. So there are 20 nail wraps in this, and there are of different sizes. So you can select your size by according to your nail, how we do when we go for nail extensions. So let's open. This is the color shade that I've ordered. It's very pretty. It's called Unicorn. So it has all these different shades, and along with this they have given a little kit. So there's an alcohol prep pad. Before you put the nail pads on, I think you'll have to clean your nail with alcohol, and then they also have here a filer so that you can shape the edges, and then there's a stick. I'm guessing this is to like fix the edges properly. So let's get into it. So first I have the alcohol prep pad, and there's this kind of a tissue here which is doused in alcohol. So I'm going to clean all my nails so that my nails are ready. So right now this is the band of stickers, and I'm going to see my size. So I think this nail will fit this size best, and the second one will go on this one. Likewise, the small pinky finger will go here, and the thumb should come either here or here. So that's my guess. Now let's just take it out. So this comes out. So now there's another protective sticker on this, and you just have to take this out, peel this off like this, and select your nail size, and then pull the sticker off. So I've pulled this off, and now I'm going to place it on my nail precisely, and let's see. Okay, and now this much I'll have to cut off. So first I'll place it properly till here. So now I'm going to just rub this thing on my nail to like get the excess thing off, and it really comes off. I wasn't really sure कि ये निकलेगा कि नहीं, but ये actually निकला. So now I'm just scrubbing the edges so that it looks smooth and looks like my nail. And this is how it looks, guys. Pretty smooth and nice. बस नीचे वाले एरिया में मुझे थोड़ी सी बम्पिंग दिख रही है, क्योंकि हो सकता है मैंने क्यूटिकल्स पुश नहीं किया, मैनिक्योर्ड नेल्स नहीं है मेरे, तो हो सकता है उसकी वजह से हो. बट इफ़ यू गॉट अ फ्रेश मैनिक्योर डन एंड देन यू पुश योर क्यूटिकल, उतना टाइम है, देन इट लुक इवन मोर नीट, क्योंकि ऊपर से और साइड से तो इट्स लुकिंग परफेक्ट. लेट्स ट्राई अनदर वन. अच्छा, अगर ना ये पहली बार आपसे गलत लग गया है तो ये आराम से निकल जा रहा है. इट्स नॉट टेयरिंग. ऐसा नहीं कि अगर आप उसको निकालते हो पहली बार सही से नहीं लगा तो फट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. मैंने इसको 2 बार निकाला है, मैं तीसरी बार इसको प्लेस करने की कोशिश कर रही हूँ. क्यूटिकल पे प्लेस करना है. हाँ, एंड नाउ इट्स डन. बिकॉज आई हैव शॉर्ट नेल्स, तो ये एक्स्ट्रा पोर्शन आई विल हैव टू स्क्रब इट ऑफ. सो व्हाट आई एम गोना डू इज जस्ट ऐसे रखो और ऐसे ऐसे स्क्रब करते रहो, एंड it just so beautifully comes out. Let's go in with the thumb, and I think ये thumb के लिए broader ones are here. तो ये मैंने निकाला है, and then I'm gonna like just place it like so and push it in, and इसको push करके ना नीचे की तरफ कर दो ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपकी nails पे कैसा लग रहा है, and then extra just grill it off. Okay, and जैसे ही मैंने इसको स्क्रब किया, just comes out so beautifully. अब ना मैं इसको पूरा लगाती हूँ बाकी फिंगर्स पे. You get the idea, and let's see how it looks. So this is the final look. I hope you can see it. It's pretty smooth, very neat, except for a few bumpy things on the side, which is probably my mistake, क्योंकि मैंने ना अपने नाखूनों को शेप फाइल किया नहीं था. I didn't have time. I just wanted to try them on and show you guys. So अगर आप इसको शेप वगैरह करोगे तो और भी ज़्यादा प्रिटी लगेगा. इट्स लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी. अब कंपैरिजन पॉइंट सोच लेते हैं. तो पहली बात, मैं इसको नेल पेंट से कंपेयर नहीं करूँगी. रीज़न बीइंग, इसमें ना पूरी शेडिंग है. देखो ना, ओम्ब्रे कलर है. देयर आर एटलीस्ट 4-5 शेड्स गोइंग ऑन, लाइट पर्पल, टील, ग्रीन, ब्लू. So there's no point comparing it with a nail paint. Of course, अगर आप एक artist हो and you can use a nail paint or 2-3 nail paints to create something like that, nothing like it. तो आपको तो फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं है. There's no point. But if you compare it with gel and acrylic nail extensions, I think this is so much better, so good.
इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ये मुझे 200 रुपये का कुछ पड़ा था, और आपको जेल एक्राइलिक 1000 से कम नहीं पड़ते, वो भी बेसिक होता है। अगर उस पर आर्ट वार्ट कराने लगो इस टाइप का ओम्ब्रे तो आराम से 1500 से कम तो नहीं पड़ेगा समवेयर, और उससे ज़्यादा भी पड़ सकता है। तो एक जो कॉस्ट के लिए ये बहुत अच्छा है। देन ईज़ ऑफ एप्लीकेशन, ऑनेस्टली मुझे लगा नहीं था कि ये इतने ईजिली लग जाएगा, मुझे लगा कि काफ़ी टाइम लगेगा। एंड आई एम अ मॉम एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग, सो आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑन माई प्लेट। तो इसीलिए मैं नेल पेंट भी नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता सुखाने का, और वो अक्सर ख़राब हो जाती है। लगा तो लो बट सूखती नहीं है। तो दीज वर लाइक सच सेवियर्स। इट टुक मी अंडर 5 मिनट्स सब कुछ करने में। एंड इसको अगर आप बहुत अच्छे से यूज़ करो थोड़ा स्मार्टली, तो इसका जो एक्स्ट्रा एज है ना, अगर जैसे आपके नेल्स छोटे हैं तो जो इसका एक्स्ट्रा एज है वो आप दोबारा रीयूज़ कर सकते हो। तो वो मैंने 2 ख़राब करने के बाद समझा, पहले मैंने उसको निकाल दिया, मुझे लगा तो वेस्ट ही हो जाएगा एक्स्ट्रा। बट सिंस इस टाइम मेरे नेल थोड़े छोटे हैं और उन्होंने जो दिया हुआ है नेल का जो रैप है वो इतना लंबा है, तो अगर उसको मैं नीटली यहाँ से कट करूँ तो उस साइड को भी मैं नेक्स्ट टाइम छोटे नेल्स पे फिर से यूज़ कर सकती हूँ। तो रीयूजेबिलिटी के वजह से उसका प्राइस और ज़्यादा ROI बेटर हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें तो हो गई। एंड देन इट लुक्स सो स्टनिंग एंड नीट, वो भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अगर आप जेल एक्राइलिक करते हो तो वो भी इतने ऐसे ही लगते हैं समहाउ। आप इसमें बहुत सारे वैरायटीज़ आते हैं, अगर आपको स्टोन्स वाले और वो सब चीज़ें वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। द 4th पॉइंट इज़ दैट जेल एंड एक्राइलिक से थोड़े से नेल डैमेज तो होते ही हैं, क्योंकि नेल की घिसाई होती है और फिर उसके बाद जब आप उनको निकलवाने जाते हो तो भी पेन होता है, वो पूरा पेनफुल प्रोसेस, और उसको निकालने के लिए भी नेल को घिसा जाता है। तो 100% नेल डैमेज होता है उसमें, हमें सबको पता है। इसमें देयर इज़ नो नेल डैमेज एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, सो इट हैज़ माई हार्ट, बिकॉज आई एम ऑल फॉर नेचुरल थिंग्स। जितना ज़्यादा आप नेचुरल कर सको, जितना ज़्यादा कम डैमेज कर सको अपने आप को, तो दैट्स वाई आई वांटेड टू ट्राई दिस। एंड ऑफ कोर्स आई एम रीबाइंग इट, आई एम रीपरचेजिंग इट, आई एम रीडूइंग इट। अब जो लास्ट पॉइंट बनता है कि कितनी देर ये लास्ट करता है, जेल और एक्राइलिक से इसका कंपैरिजन कि कितनी देर ये लास्ट करता है। जेल एक्राइलिक मुझे लास्ट करते हैं मिनिमम 2 हफ्ते, 1 महीने भी, कभी कभार अगर वो टूटे ना और अच्छे से आपने करे हो तो 1 महीने भी लास्ट करते हैं। बट नीचे से थोड़ी सी एक्सटेंशन दिखने लगती है, बट आराम से 2 हफ्ते से ऊपर तो लास्ट करता ही है। ये वाला अभी मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। लेकिन अगर आपको जानना है कि ये कितनी देर लास्ट किया और वो कंपैरिजन चाहिए तो मुझे कमेंट्स में नीचे बता देना, मैं बताऊंगी कि कितनी देर लास्ट किया और कितनी जल्दी निकला, क्या पानी से निकला कि नहीं, वो सब मुझे आप देख के पता चलेगा। तो फॉलो अप वीडियो के लिए कॉमेंट में बताना। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।